वंस अगेन सुषमा मैम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट आज हमारा मैजिक बुक का चैप्टर होगा 14। सब लोग जानते ही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना मेडिटेशन। ओके। जी, थैंक यू सो मच सुषमा मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच वंस अगेन। आज I want to lead a guided meditation to align all your chakras to bring power to align and clear all the chakras, all the seven chakras. Since seven chakras are pretty much the key to making your life fall into place, when all seven chakras are aligned, हम जो भी चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, उन्हें अचीव करना और इजी हो जाता है। तो इसीलिए आई थॉट, और आज लिटिल लेटर देयर विल बी ऑफ कोर्स द eclipse, and that is the time when they say that the vibrations are such that a portal opens, जब अपनी मनोकामनाएं पूरी करना और इजी हो जाती हैं। तो उसी के प्रेपरेशन में आई थॉट विल डू दिस। ओके, लेट्स ऑलराइट, स्टार्ट। थैंक यू। ऑलराइट। सो take a very slow deep breath in and an even slower breath out. Take another slow deep breath in and exhale gently. Once again, and deeper this time. And as you exhale, allow your body to soften. As you allow your body to soften, your mind is becoming more and more still. This morning, we gather not just to relax, but to recalibrate, to rewire. So, silently feel, I now allow every chakra in my body to open, align, heal, and recharge in perfect divine order. Imagine, think, or feel a column of golden light descending from very, very high above your head. It is entering through your crown, moving down your face, your neck, your shoulders, your heart, your stomach, down to your spine, through the soles of your feet, and anchoring you, grounding you to the earth beneath you. You are now sitting peacefully in a column of divine light. You are safe, you are supported, and you are ready.
You're feeling blessed for this moment, and you're allowing a transformation to happen. Now, bring your awareness to the base of your spine. Visualize a deep, glowing red light, warm and steady. This is your foundation, your survival, your belonging. Whisper internally, I am safe, I am supported, I am held by life itself. Imagine roots growing from the soles of your feet and base of your spine, going deep into the earth, Mother Earth, wrapping around ancient stones which have stood the test of time, drawing strength upwards. If there has been any fear, insecurity, financial worry, instability, see it dissolving little by little into the soil, completely transformed. See it, feel it. All fears, all instabilities, all financial worries leaving your body. Now see the red light becoming brighter, more stable, strong, and solid. Feel safety locking into your nervous system. Feel it. Shift your awareness to just below your navel, नाभि के नीचे. Imagine, think, or feel a glowing orange orb, एक गोल से आकार में नारंगी रंग का light spinning gently. This is pleasure. This is creativity, sensual flow, emotional fluidity. If you feel guided, then place your hand there and repeat in your mind or feel it in your mind. I deserve joy. I deserve pleasure. I deserve emotional freedom. Creativity flows through me. I give birth to ideas with ease. Imagine warm flowing water
washing through your hips, clearing out any old guilt or even new, any shame, any blocked desire. You are allowed to want, you're allowed to feel. The orange light is expanding, soft, magnetic, alive. Feel the creative energy awakening. Feel it. Own it. अपना बनाइए इस एनर्जी को. Let your awareness rise to your upper abdomen. See, think, or feel a radiant golden sun igniting there. This is your power center. Your willpower rests here. Your decision-making fire. Feel silently. I choose myself. I trust myself. I act with confidence. Feel it. I choose myself. I trust myself. I act with confidence. If there have been any betrayals, any disappointments, see cords dissolving in golden fire. You are distancing yourself completely from any betrayals, any disappointments. The sun is now growing stronger and stronger. Not aggressive, but sovereign. Sovereign meaning you are the king of your destiny. You are the queen of your destiny. Your destiny shall obey your command. Feel warmth spreading through your ribs, spine, chest. Your inner authority has returned and has come to stay. Shift your awareness once again, let it rise to the center of your chest. See, think, or feel an emerald green light, soft, luminous, sacred. Take a deep breath into your heart. Fill your lungs and feel the green light, soft and luminous, spreading all over. And repeat in your mind or feel it. I forgive. I release. And I am open to divine love. I am open to self-love. I forgive.
I release. I am open to divine love. See, if someone appears in your mind, allow them. Place them gently in green light. No force, just compassion, just love. Now imagine a pink light blending into the green with unconditional love, filling every crack within you, healing you. See your heart expanding wider, brighter. Love is no longer something you chase. You are the source of love. Feel this. Love is no longer an emotion. You are love. Love is radiating from you. You have become the source of love. Let your awareness rise to your throat. Visualize, think, or feel a luminous blue wheel spinning clean and clear. Feel the wheel spinning, the wheel of blue light spinning. Say internally or feel it. My voice is clear. My truth is safe. And I express with grace. Imagine cool blue light washing away words that you could not utter. Unspoken emotions are dissolving. Your breath is deepening. Your communication is aligning with your soul. When you speak, people listen. What you express, they understand exactly how you want them to. Feel a spaciousness in your neck and jaw region. Feel an ease in that region. Focus between your eyebrows. Imagine, think, or feel an indigo light so deep and so mystical, like a midnight sky filled with stars. Repeat or feel. I see clearly. I trust my intuition.
I know. Imagine a soft veil lifting. Any old confusion is dissolving. It is dissolving. You are guided. Always, always guided. And you are becoming aware of that guidance. Feel a subtle expansion behind your forehead, and clarity has returned. Bring or let your awareness rise to the top of your head. Imagine, think, or feel 1,000 petaled violet white lotus opening its petals slowly, softly, gracefully. A beam of divine light is pouring in, allowing the petals to open one at a time. Allow it. Revel in the joy of the petals opening. Repeat or feel. I am connected. I am divine. I am one with the universal intelligence. I am connected. I am divine. I am one with universal intelligence. Now feel the light cascading, coming down through every chakra, root to crown, crown to root. All spinning in harmony, in perfect alignment. Imagine all 7 colors forming a radiant column of light. You are calibrated. You are tuned. You are certainly upgraded. Feel it. Let it all work through your entire body. Now, see all chakras are synchronized. Red, orange, stacking one on top of the other. Yellow, green, blue, indigo,
violet. They are all spinning at perfect speed, balanced, brilliant. Feel a gentle pulse moving up your spine. With each pulse, energy is increasing, clarity is sharpening, confidence is locking in, and peace is anchoring deeply. Stay silently or feel it. My energy is aligned, my power is activated, and my life is responding instantly. Feel the shift. Feel it. Let the shift land and anchor. Take a slow grounding breath. Imagine, think, or feel the golden light sealing your aura, smooth and luminous. See your future self standing before you, aligned, radiant, absolutely certain. Step into this being, merge. It is done. Whenever you are ready, just move or wiggle your fingers and toes and open your eyes gently, knowing something has already shifted and it will continue. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत बढ़िया था। दूसरी दुनिया में पहुंचे हुए थे हम। माइक ओपन कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। कोई कुछ भी कहना चाहता है, सुष्मिता मैम को थैंक्स करना चाहता है क्या? माइक आर ओपन। Thank you, Sushmita. I was in trance. Love you. Love you, Saloni. Love you too. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sushmita. It was so good. Wonderful. Very Oh, nice. so happy to hear you. Very nice, Sushmita. Very nice and very, very good. Thank you. Voice, मैंने Sushmita. ये लिख के रखा। It's so nice to connect back. Thank you, Anshu. How are you doing? Oh, fine. We'll catch up. Yes. मैंने ये लिख के रखा है, अगर फिर से कभी 7 चक्र अलाइनिंग करना है तो I can do this in the similar fashion. नो इशू मैम। Thank you, Julie. Thank you.
एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, और किसी को वैसे देखना हो तो यूट्यूब पे जाके देख सकता है। अभी कल ही हमने लास्ट जो मेडिटेशन था सुष्मिता मैम का, हमने अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, और अच्छा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। okay. All right. A ओके, very wonderful day to all of you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. स्नेहा। स्नेहा। गुड मॉर्निंग राजेश जी। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है अभी ना, पॉसिबल ही नहीं, बहुत। ओके, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। आज कौन पढ़ेगा जी? मैजिक बुक चाहती है आज एक नया चेहरा जो बुक पढ़ने के लिए आगे आए। कौन है जो आएगा आज? एक सेकेंड, ड्रेस नजर आया मुझे, किसका हैंड ड्रेस नजर आया था, एक सेकेंड। डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण, बुक है आपके पास? ठीक है डॉक्टर किरण, आज आप, आज आपके घर करते हैं। एक मिनट बस निकाल के ला रही हूँ, 1 मिनट लगेगा। ओके, नो इश्यू। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे ये डिम्पल मैम और स्नेहा, दोनों का गले में ही प्रॉब्लम आ रही है, दोनों के थॉट में। तो आज इस मैजिक सेशन के बाद इन दोनों को हील करते हैं, दोनों के गले में प्रॉब्लम है। शुरू करें सर? हाँ जी मैम। चौथवा दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखते और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह से गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन भर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त तो होंगे। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि अपने जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आपको दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि अपना जो हम डे स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो हमने नियमतें लिखनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि अपने पूरे दिन के बारे में जो हमारा वो शेड्यूल है पूरा अपना, वो देखना है हमने कि आज करना क्या क्या है। मुझे सुबह उठते ही सोच लेना है कि मेरे को, आज मैं सुबह उठा हूँ तो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, आफ्टर दैट मेरे को मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। या मुझे सुबह उठते ही मैजिक बुक करनी है, आफ्टर दैट मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद मेरे को अपने ऑफिस के लिए रेडी होने ऑफिस जाना है। वहां से ऑफिस में मैं
इस टाइम से लेके इस टाइम तक रहूंगा। आफ्टर दैट मैंने लंच करना है। लंच करने के बाद मेरे को उसके बाद में फिर ऑफिस वर्क करना है। फिर उसके बाद में एक मेरी जो क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे मीटिंग करनी है। उसके बाद मुझे घर के लिए निकलना है। रास्ते में मेरे को ये सामान लेना है, जिसमें ये चार पांच चीजें आएंगी जो मेरे को अलग अलग स्टॉप पे इस पर रुकना है, वहां से सामान कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट मेरे को घर आना है। घर आने के बाद में मेरे को टीवी देखना है, या मेरे को बच्चों के साथ वक्त बिताना है, या मेरे को मेरी वाइफ के साथ वक्त बिताना है। आफ्टर दैट उसके बाद में मैं रात को सो जाऊंगा। तो ये क्या करना है, हमने पूरे अपने दिन के बारे में पूरे ही मॉर्निंग में ही सोच लेना है कि आज मैंने क्या क्या अच्छा अच्छा करना है। मुझे वही फीलिंग में रहना है कि हाँ, मेरा जो दिन है ना बहुत अच्छा जा रहा है। तो जब हम पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा दिन अच्छा जा रहा है, तो हमारा दिन अच्छा जाता है। और ये हम एक दिन के लिए नहीं कर सकते, हम इसको 1 वीक के लिए भी कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। मैजिक बुक हमें अभी फिलहाल, अभी ये शुरू के फर्स्ट पैरा के अंदर ये बता रही है कि हमें आज के दिन के लिए, जैसे मैं मॉर्निंग में उठा हूँ, तो मैंने उठते ही अपने आप को सिर्फ 5 मिनट के लिए, पहले मैंने तो अपनी नियामतें गिननी है। आफ्टर दैट मैंने उसके बाद में अपने पूरा आज दिन के बारे में सोच लेना है कि मेरे को आज दिन के अंदर फर्स्ट मैं मैजिक बुक कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, मेरे को 10 से 12 ये करना है, 12 से 2 ये करना है। आप एक एक घंटे का उसके अंदर ले सकते हो, या आप 2 2 घंटे के लिए कर सकते हो उसको, या आप 4 घंटे के लिए एक्सपेंड कर सकते हो उस टाइम को। 3 4 घंटों में मेरे को क्या करना है। आपको लगता है कि मुझे आज पता ही नहीं है, तो बात आ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत उसके बारे में ऑलरेडी पहले ही सोच लें कि आज हमें क्या करना है, तो जो हम इमेजिन कर लेते हैं कि आज हमारा दिन ऐसे ऐसे जाएगा, मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि वाव मोमेंट आएगी उस समय, तो वो वाव मोमेंट आती है। जो आप सोच के चलेंगे अपने दिन के बारे में, पूरा एक स्केड्यूल बना के चलेंगे, वही शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको आज वो देखना आपकी कैसे चेंजेस आते हैं आपके दिन में। एक्चुअली हम लोग सोचते ही नहीं अपने पूरे दिन के बारे में, आगे होगा तो होगा क्या। जब हम नहीं सोचते हैं तो फिर जैसे मर्जी आता है, लेकिन अगर सोच लेते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जाता है। तो हमें क्या है, अपना फ्यूचर खुद लिखना है। अब हम मैजिक बुक में आ गए हैं। हमारे पास हम खुद क्रिएटर अपने आप को मान रहे हैं कि हम खुद क्रिएटर हैं, और वो हमें क्रिएटर बनना है। सिर्फ कहने के लिए क्रिएटर नहीं है, हमें वो बन के दिखाना है कि हम वो क्रिएटर हैं। और मैं अपना टाइम, अपना आने वाला समय मैं खुद लिख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आगे क्या होगा, आज पूरे दिन के अंदर मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो मैं अपने आप को पहले ही डिफाइन कर लूंगा कि हाँ, आज का मेरा दिन ऐसा जाएगा। अपने लिए मैं पहले ही शुरुआत कर लूंगा। अपने कोरे कागज के ऊपर आज मेरे को अपने दिन के बारे में लिखना है। तो आगे पढ़ते हैं, और मैजिक बुक हमें क्या कहती है। यस, डॉक्टर यदि किरण। आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। अब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम सुबह उठते हैं और हमारा मूड थोड़ा बहुत बाई चांस, हमने चलो सोचा भी नहीं आज हमारे लिए क्या होना है पूरे दिन के अंदर, तो जैसे हम उठे अपना हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है किसी भी छोटी सी बात के ऊपर। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मोमेंट भी सेम ऐसा आता है। हम रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है हमारे साथ कि कुछ ना कुछ रास्ते में ट्रैफिक की वजह से हम चिड़चिड़े बने रहते हैं। आगे अगर ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं तो भी नहीं, अगर जा रहे आगे मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो में ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर हमारे साथ ऑफिस में भी ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो हम यार सोच रहे होते हैं क्या चक्कर है, आज दिन ही कैसा चढ़ा यार कि सुबह उठते ही ना बस
क्या घर के अंदर जरा सी बात ऐसी हो गई और मेरा मूड खराब हो गया, पूरा दिन ही मेरा वैसा निकल गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? तो क्या किया मैंने, अगर अपना मूड सुबह ही मॉर्निंग में खराब कर लिया और ऐसे ही चलना, तो पूरा दिन वैसे ही सेम चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो क्यों ना हम उस चीज को पहले ही अपने लिए, जब हमें मालूम है, देखो एक चीज होती है जो हमें नहीं मालूम कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब आज हमें मालूम चल रहा है कि मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपना दिन को अच्छा बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं चीज करूँ। आज मैं सुबह उठते ही अपने आप को बड़े हाई फीलिंग में और अच्छी फीलिंग में लेके आऊं कि वाह, मेरा मूड तो आज बहुत अच्छा है यार, आज बहुत दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्यों ना मैं अपने दिन को पहले ही सुबह उठते ही वंडरफुल कह लूं। क्यों ना मैं कहूँ कि वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। सुबह उठूं और बिल्कुल प्रॉपर ऐसे वाह मूवमेंट में लेके आऊं अपने आप को, 10 नियामतें लिखने के बाद में, वाह आज का दिन तो यार मेरी जिंदगी का सबसे वंडरफुल दिन आने वाला है। आज का दिन तो मेरा लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा। रोज ये अगर मैं कहता हूँ मेरा आज लाइफ का दिन सबसे अच्छा दिन होगा, तो क्या जो हमारा दिन पीछे गया था वो तो मैंने शानदार किया ही था, लेकिन क्या आज मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरा दिन सबसे ज्यादा शानदार होगा, तो क्या मेरा दिन वो उससे भी अच्छा हो सकता है? करके देखते हैं एक बार। मैजिक बुक कह रही है कि हाँ ऐसा होगा, कि अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारा दिन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटर है हम लोग खुद ही। भगवान ने हमें बनाई इसीलिए, क्रिएट करने के लिए। लेकिन वो चीजें हम सब भूल चुके हैं। वो जो हमें भूले थे, आज वो हमें याद करा रही है मैजिक बुक, कि आप क्रिएटर हो, आप रचयिता हो। मैंने आपको भेजा था यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर सुख भोगने के लिए, तो आप वही चीज करो। आप क्यों सुबह उठते ही क्लैश क्लेश और इन चीजों में घुस जाते हो? क्यों अपना मूड अपसेट करते हो? सुबह ही अपने दिन को पूरा बना लो ना अच्छे से। उठते ही अपने आप को स्केड्यूल कर लो कि आज का दिन तो मेरा बड़ा अच्छा जाने वाला है यार। आज का दिन तो मैं घर से निकलूंगा तो रास्ते में मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा आज, मेरे को रेड लाइट्स नहीं मिलेंगी रास्ते के अंदर। मैं जल्दी से ऑफिस पहुंचूंगा, मेरे को वहां कार खड़ी करने के लिए जो मैं चाहता हूँ वही कार की पार्किंग मिलेगी। आज मेरे साथ बॉस का बिहेव तो अच्छा होना ही होना है। आज मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट करना ही करना है। आज जब मैं ऑफिस में लंच करने बैठूंगा तो आ जाएंगे लोग मेरे पास में लंच करने के लिए, वो कहेंगे वाह तेरा खाना कितना अच्छा है। आज इसके बाद में जो मेरी मीटिंग होगी क्लाइंट्स के साथ, वो तो सक्सेसफुल होनी ही होनी है। आज तो दिन वंडरफुल निकलेगा ही निकलेगा। आज तो उसके बाद शाम जो मेरी बहुत अच्छी निकलेगी निकलेगी। शाम को इतना आज वंडरफुल रहेगा, घर जैसे ही मैं आऊंगा मेरी वाइफ मेरे साथ में बड़ा अच्छा बिहेव करेगी, मेरी लवर मेरे साथ में बड़ा अच्छा बिहेव करेगी, बच्चे तो मेरी बस क्या बात है, आते ही कहेंगे वाह पापा आज का दिन तो बहुत अच्छा था। लोग आते ही मेरे को पानी मिलेगा, आते ही मेरे साथ बच्चे मेरे खुल मिल के मेरे साथ में बातचीत करेंगे। और रात को जब मैं सोऊंगा तो पूरे दिन के बारे में सोचूंगा कि वाह आज पूरे दिन के अंदर मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा गया। सुबह उठा था मैं और मॉर्निंग में ऐसा हुआ था, उसके बाद ऑफिस में मेरे साथ बॉस ने इतनी रिस्पेक्ट की मेरे को, आज मेरे साथ बड़ा अच्छा अच्छा हुआ था। और रात को हम ये कहते हुए जादुई स्टोन लेके सो जाएंगे, और सोते सोते भी हम सोचेंगे वाह कितना अच्छा दिन गया था यार आज मेरा, वाह आज तो वंडरफुल जो मैंने सोचा था आज मॉर्निंग के अंदर मेरा वैसे ही वंडरफुल दिन गया। और उसके बारे में सोचते सोचते सोऊंगा, और जब मैं सोते हुए यही सोचते हुए सोऊंगा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया था, उस अगले दिन जब मैं उठूंगा ना, तो अगले दिन में मेरा सेम मूड होगा वैसे ही, वाओ मोमेंट। तो यही वाओ मोमेंट हमें डेली रूटीन हमारा यही होना चाहिए। बीच में कुछ एक आधा परसेंट कुछ ऐसा हो जाए तो उसको भूल जाओ, जो जादू स्टोन हमें कहता है भूल जाओ उस नेगेटिव को। जब तक हमारे साथ है हम लोग तो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आता रहेगा। तो क्यों ना हम अपनी पूरी लाइफ को पॉजिटिविटी से भरना फिल करना शुरू कर दे। नेगेटिविटी को हम दूध में से मक्खी की तरह निकाले और बाहर फेंक दे, ऐसे करके उठा के बाहर। हमें चाहिए नहीं नेगेटिविटी, उसको बाहर निकालते जाओ अपनी लाइफ के अंदर से। हर नेगेटिव जो भी आता है हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको घसीटते रहते हैं। पास्ट के जो हमारे साथ में नेगेटिविटी हुई है हम उसको पकड़ के जीते रहते हैं। कंप्लेंट्स जो पीछे की है, प्रेजेंट में तो हमारी हो या ना हो, लेकिन पास्ट की हम चीजें पकड़ के चलते हैं साथ में। हमारी आदत बन चुकी है पास्ट को लेके साथ में चलना, कि नहीं उस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया था,
तो मैं ये चाहूँ या चाहूँ कि वो बुरा हो, लेकिन वो बंदा बहुत खराब है, बंदा बहुत बेकार है। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ, जो उसने किया था तो उसके कर्म थे, लेकिन आगे वो मेरे साथ अच्छा करेगा? तो क्या हम ये नहीं सोच सकते? क्या हम पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का रास्ता नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। हम अपने पास्ट को जो है उसमें से अच्छाइयाँ निकाल के अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और वो हमें करना है। अगर हम मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर हैं तो हमें ये चीज करनी है। हमें सोचना है इस बारे में, हमें फील करना है, हमें वो करना है। हमें मैजिक बुक ने सिखा रही है तो हम मैजिक बुक की उसमें सीखेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। दिन में कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना है, दिन को कैसे अच्छा बनाना है, एक छोटे छोटे स्टेप से ही हमें सिखा रही है। एक 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 पल के बारे में सिखा रही है कि हमें क्या और कैसे करना है। तो अगर हमें नहीं आता था पहले ये चीज करना, अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ और आज मैं समझ रहा हूँ इस चीज को कि मैं अपने लाइफ के हर मोमेंट को एक अच्छा मोमेंट बना सकता हूँ, तो मैं वो क्यों ना करूँ? मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड क्यों ना करूँ? तो मेरे को अपनी लाइफ को अपग्रेड करना ही करना है। अगर मैंने मन में ठान लिया है, आज मिडवे में पहुंच गया हूँ मैजिक बुक के, आज 14th है, 28 चैप्टर इसके, अगर मैं 14 चैप्टर तक पहुंच गया हूँ, अगर मिडवे मैंने कर लिया है, तो क्या मैं आगे के स्टेप जो है मैं पूरे कंप्लीट नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। अगर मेरे को कंप्लीट ना करना होता तो मैं ये शायद 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले छोड़ चुका होता इस मैजिक बुक को। मैं टाटा बाय बाय करके अपना नींद पूरी कर रहा होता। मेरे को नहीं जरूरत होती इसकी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ की नहीं पड़ी, मुझे अपग्रेड होना ही नहीं है। 4 दिन सुना, 5 दिन सुना, एक हफ्ता सुना, 10 दिन सुना, अरे बस हो गया वो, बना लिए मैंने यार। ये सब कहने की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ा है मेरी लाइफ के अंदर फर्क? कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक दो छोटे मोटे काम हो गए मेरे बस, अब मुझे वही चाहिए था। अब इसके बाद क्या जरूरत है? छोड़ो ना मैजिक को। नींद पूरी करते हैं हम, और वो हम सोते रहेंगे और खोते रहेंगे, नींद अपनी पूरी करते रहेंगे, अपना मस्त सो रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाग रहा हूँ तो मुझे मालूम है मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने लाइफ में बढ़ना है। मेरे को खुशी का दिन चाहिए, मुझे खुशी का हर पल चाहिए। मुझे रात को सोना है तो बड़े खुश होकर सोना है, मुझे सुबह उठना है तो बड़े खुश होकर उठना है। मेरे को जो भी करना है आज अपने पूरे दिन के अंदर ना, सब अच्छा ही अच्छा करना है। बुराई को तो मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अगर आज मैं मिड वे के अंदर हूँ, मिड आधे रास्ते में, अब आधे रास्ते में मेरे पास कोई है ही नहीं ना, मेरे को आगे ही बढ़ना है। मेरे को लाइफ में मेरे को पीछे की तरफ मुड़ के देखना ही नहीं है, मेरे को पीछे जाना ही नहीं है। अब मैंने आधा रास्ता पार कर लिया है, तो मेरे लिए तो आगे जाऊंगा तो खुशियां हैं, पीछे जाऊंगा तो दुख है। तो मेरे को वापस क्यों जाना? मेरे को दुख की तरफ क्यों जाना है? मेरे को हर स्टेप आगे क्यों नहीं बढ़ाना? मेरे को आगे क्यों नहीं चलना अपनी लाइफ के अंदर? मेरे को क्यों नहीं बढ़ना आगे? जब मुझे पता चल रहा है आज मैं मिड वे पे खड़ा हूं, तो आगे जाऊंगा, मेरे लिए सामने खुशियां मेरा इंतजार कर रही है। अपग्रेड मेरे को नजर आ रहा है कि मेरे को अपग्रेड होऊंगा मैं, तो मैं आगे क्यों ना चलूं? जितना रास्ता मैंने पार कर लिया, तो मुझे अब आगे ही आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं देखना। ठीक है? और अब आगे और कैसे बढ़ना है, वो हमें मैजिक बुक बताएगी। डायरेक्शन हमें दे रही है, और डायरेक्शन और बहुत अच्छे डायरेक्शन पे हम लोग चल रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को हमने छोड़ना नहीं है, इस डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ते रहना है। डॉक्टर किरण। जी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने के पहले ही अच्छा महसूस करें। मैजिक बुक की यही बहुत खासियत वाली बात है कि बड़े प्यार से, बड़े छोटे छोटे तरीकों से ये हमारी लाइफ को चेंज कर रही है। यही मैजिक बुक का मैजिक है। कितने छोटी छोटी बातें हैं ये। हमने रात को सोते ही एक सिर्फ जादुई पत्थर हाथ में लेना है, वो पूरे दिन के बारे में हमने सिर्फ 2 4 5 मिनट
सोचना है कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। और मान लो मेरे साथ में दिन के अंदर 99 चीजें बुरी हुई तो एक चीज तो अच्छी हुई होगी, कोई ना कोई एक अच्छी चीज वो हमें सोचनी है। और वो एक छोटी सी चीज जो है ना वो हमारा अगला दिन अच्छा बना देगी। वो रात को हमने सोते हुए सोच रहे हैं वाह आज का, उसी चीज को, वो एक सेकंड को पकड़ लो, आप एक सेकंड को बढ़ा के 5 मिनट के लिए ले जाओ, सिर्फ उस एक सेकंड को, एक छोटी सी मूवमेंट को पकड़ लो, कोई भी आज अच्छी हुई थी। आज चलो मैं सो के उठा ही था तो बहुत अच्छा, बस मेरी आंखें खुल गई, यही सबसे अच्छी बात थी आज पूरे दिन के अंदर। बाकी तो सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ, मैंने क्योंकि प्रोग्राम नहीं किया अपने आप को। और मैं बस उठ गया था, उठने के लिए उठा, बस आंखें खोली, उसके बाद में बस उठते ही उसके बाद में तो जो मेरे घर के अंदर बस हुई प्रॉब्लम्स हो मुझे मालूम है। पूरा दिन मेरा प्रॉब्लमेटिक गया है, कोई बात नहीं, मैंने आंखें खोली थी आज सुबह, वही सबसे अच्छी मूवमेंट थी। और बस उस मूवमेंट को लेके जब रात को सोने लगे हो, स्टोन उठाओ और आज उस मूवमेंट के लिए सोचो कि वाह यार, आज मैंने आंखें खोली, सुबह दिन हुआ था, इतना प्यारा दिन हुआ था। आज मंडे था, मंडे मेरा दिन, बस आंखें खोलते ही मुझे तो था कि बहुत अच्छा, वाह। पता नहीं यार दुनिया में मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैंने आंखें खोली आज। पता नहीं कितने हजारों लोग वो आज आंखें ही नहीं खोल पाए यार, उनके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, छोड़ो। लेकिन मैंने तो आंखें खोली आज। मैं तो सुबह उठ के अंगड़ाई ली थी, वाह। मेरा तो सुबह का दिन जब तक मैंने अंगड़ाई ली बहुत बढ़िया दिन था, बहुत अच्छा था। क्या बात है, मैं कितना अपने आप को यार, मेरा फिगर कितना अच्छा है जब मैं सुबह उठता हूँ। सुबह उठते ही मैं पहले कितना फ्रेश सा होता हूँ, वाह। मेरी आंखें खुलती है, मैं ऊपर देखता हूँ, मेरे को हमारा फैन कितना अच्छा लगता है, मेरे को ऊपर की अपनी छत कितनी प्यारी लगती है। जब मैं आंखें खोलता हूँ उसके बाद मैंने अपना सुबह चेहरा देखा तो मैं कितना मुस्कुरा रहा था सुबह, वाह। वाह, बस वाह वाह, वो मल्लाओ अपने अंदर वो एक सेकंड जो आंखें खोली थी ना, उसी को वाह बना लो, उसी को सोचते रहो कि आज मैंने मेरे हाथ ही खोले थे सुबह उठ के, ऐसे करे कितना प्यारा लग रहा था मैं अपने आप को। मैंने जब ऐसे हाथ खोले थे तो अपने आप को कितना मैं अच्छा महसूस किया था उस समय, वो सेकंड वो पल कितना बढ़िया था। आज जब मैं सुबह उठा, मैंने अपनी आंखें खोली, इतनी मेरी सुंदर आंखें मुझे भगवान ने दी है। और मैंने आंखें खोली और मैंने लंबी सी सांस ली थी, वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या मैंने जब सांस ली थी कितनी प्यारी खुशबू आई थी, पता नहीं आसपास कौन सा परफ्यूम था मेरे पास में, तो कितना मजा आया था। वो एक पल कितना शानदार था जब मैं उठा था। तो बस वो मेरे को एक पल जो है ना, सुबह उठने वाला, चाहे पूरे दिन के अंदर जो मर्जी मेरे साथ हो, उस एक पल को पकड़ लो। उस एक पल को रात के सोते समय इतना लंबा खींच जाओ, 5 मिनट तक खींच जाओ उसको, एक सेकंड को, उस उठने को खींच जाओ। आप अगला दिन देख लेना। और सुबह उठ के जैसे ही नियामतें करोगे उसके बाद में आप अपने दिन को प्रोग्राम कर लेना कि आज मेरे साथ उठाओ, आज मेरे साथ मैंने ऐसा होना है, आज मेरे साथ वैसा होना है, आज मेरे बॉस ने मेरे को शाबाशी देनी है, आज मेरे शॉप पे जाना है, मेरे पास में क्लाइंट ही क्लाइंट नजर आएंगे मेरे को, आज मेरे साथ में ऐसा अच्छा होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रेड लाइट नहीं मिलेगी, आज तो बस क्यामत का दिन है, आज तो मस्ती भरा दिन है, आज तो मौजे ही मौजे हैं पूरी जिंदगी के अंदर। आज तो मतलब ऐसा दिन जाना है, जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं गया होगा, पूरी लाइफ मेरी में ऐसा दिन नहीं आएगा। रोज ऐसे सोच लो ना, रोज उठ के जाता क्या है उसमें, सोचने में क्या है, करके तो देखो एक बार। अगर मेरा दिन के अंदर सारा दिन मेरा पूरा खराब गया, एक सेकंड था, उसको मैंने रात को 5 मिनट के लिए सोच लिया और अगले दिन मैंने प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम करने से मेरे दिन के 2 घंटे अच्छे हुए, तो क्या मैंने अपग्रेड नहीं किया? मैंने बिल्कुल अपग्रेड किया। एक सेकंड जो मेरी लाइफ का आज अच्छा आया था, उसको अगले दिन में मैं 2 घंटे पे ले आया, या 1 घंटे पे ले आया, या आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए ले आया। तो जब मैं एक सेकंड को खींच के 5 मिनट के लिए रात को सोते समय अच्छा कर सकता हूँ, तो क्या मैं 5-10 मिनट जो अगले दिन मेरे अपग्रेड हुए, क्या मैं उसको और अच्छे से नहीं ले सकता? मैं ले सकता हूँ ना उसको भी। जब मैंने एक सेकंड को खींच के 5 मिनट का कर दिया, तो मैं वो पूरे दिन के अगर मेरे को 5 या 10 मिनट या 1 मिनट मिला है तो मैं उसको और अच्छा कर सकता हूँ। अगले दिन मैं और अपग्रेड कर सकता हूँ, उससे अगले दिन मैं और अपग्रेड कर सकता हूँ। तो क्या मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ? करके देखता हूँ। नहीं कर रहा तो
क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आज अगर मैं करके देखता हूँ और मेरी लाइफ अच्छी होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लाइफ अच्छी करते हैं ना अपनी, अपग्रेड करते हैं अपने आप को। डॉक्टर किरण, जी। आगे बढ़ लो। हाँ जी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। गारंटी देता है जी, गारंटी। और क्या चाहिए। किसी चीज की गारंटी नहीं है, मैजिक बुक गारंटी दे रही है इस चीज की। दे तो रही करके है। देख लो। हम तो वैसे भी गारंटी पे जीते हैं, कोई भी चीज लेके आते हो तो पहले सोचते हैं भैया गारंटी मिल जाए इस चीज की। एक 10 रुपए की चीज भी लेके आते हैं ना तो भैया गारंटी है ना, सही है। क्योंकि विश्वास नहीं रहा आज की डेट में, तो ये गारंटी दे रही है, तो अब आगे देखते हैं गारंटी। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वो यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज को अच्छी तरह होने के पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। आप लिखो या मत लिखो, आपके पास टाइम नहीं है मत लिखो, अपने दिन को सिर्फ सोच लो। सिर्फ सोच लो कि मैंने घर से निकलते हुए और रात तक के बारे में पहले ही अपने आप को सोच लो कि मैंने आज पूरे दिन के अंदर क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, क्या क्या मैं करूंगा। सबको पता होता है ना, जब उठते हैं तो हमें कि भैया यहाँ जाना है, मेरे को ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने वालों को तो पता है 8 बजे निकलना है और शाम के 6 बजे तक। और ऑफिस के अंदर भी क्या क्या हो रहा है उसको पता है। तो वो पहले ही सोच रहे हैं ना कि आज ऑफिस में अच्छा अच्छा होगा, बॉस के साथ में मीटिंग मेरी अच्छी होगी, क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग अच्छी होगी, मेरा जो कुलीग्स है उनके साथ में मेरी मीटिंग अच्छी होगी, आज उनसे अच्छी बातचीत होगी, आज हम हंस हंस के बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हमें पूछना होता है। अगर मान लो हम बैठे हुए हैं और अभी ये मीटिंग चल रही है, इसके बाद में अगर मेरे को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पहले मेरे दिमाग में आएगा, फिर मैं उसको सोचता रहूंगा जब तक मेरी बारी नहीं आएगी कि ये पूछना है, मेरे को ये पूछना है। मेरे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहेगा वो क्वेश्चन कि मेरे को ये पूछना है। तो जब हम एक क्वेश्चन पूछने के लिए उसको दिमाग में रखते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में 2 3 बार 4 बार जब तक बारी नहीं आती तब तक सोचते हैं उस क्वेश्चन को कि मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है। दिमाग में हमारे एक बार क्वेश्चन आ गया और मुझे पूछना है, तो पहले ही अगर 10 जनों के हैंड रेज हैं, जब तक मेरी बारी नहीं आती ना तब तक मेरा दिमाग उसी में रहता है क्वेश्चन के बारे में कि मेरे को क्या पूछना है। वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो अगर हमें एक क्वेश्चन पूछना होता तो उसको प्रोग्राम कर लेते हैं, तो क्या हम अपने दिन को प्रोग्राम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं ना। अपने प्रोग्राम कर सकते हैं हम। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ अपना कर सकती है कि मेरे को पहले 2 घंटे में क्या करना है, मेरे को पहले 1 घंटे में क्या करना है। सुबह उठते ही उसको पता होता है कि आज सुबह उठ के मैंने ये काम करने हैं या करवाने हैं किसी ना किसी से। तो जब करवाने हैं और करने हैं, जो भी करना है उसके बारे में सोच लो बैठ के थोड़ा सा कि आज मेरे को इतने अच्छे तरीके से करवाने हैं। आज मेरे को खाना बनाने के लिए हम सोचते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट रेडी किया, लंच बाई चांस ऑफिस जाने वाले हैं हस्बैंड तो उनके लिए किया, रात को हम सुबह का सोचना शुरू कर देते हैं कि रात को खाना क्या बनाना है। ज्यादातर लेडीज ऐसी करती है कि रात को क्या बनेगा जी, पहले ही अभी देखो टाइम है, सब्जी सुब्जी काट लेती हूँ, तो रात के बारे में सोच लेती हैं कि रात को क्या करना है मेरे को। तो अगर हम ये चीज सोच सकते हैं कि रात को मेरे को सब्जी कौन सी बनानी है, तो रात को हम ये भी सोच सकते हैं कि हस्बैंड घर के अंदर आएगा तो मैंने उससे प्यार से कौन सी बातें करनी है, या पूरे दिन के अंदर अच्छा अच्छा क्या क्या होना है मेरे, मैंने क्या क्या करना है आज पूरे दिन के अंदर अच्छा अच्छा। सब्जी बनाने का तो सोच लेंगे लेकिन ये नहीं सोचेंगी
कि भैया सामने वाले के साथ क्या बिहेव करना है, कैसे करना है, आज पूरा दिन मैंने अपना जो है ना वो प्रोग्राम कैसे करना है। तो अगर हम सब्जी बनाने का सोच रहे हैं रात को, क्या बनानी है, क्या काटनी है, कैसे करना है, तो बाकी चीजों के बारे में भी सोच लो कि आज पूरे दिन में मैंने अच्छा अच्छा क्या करना है। शुरुआत तो करके देखो, देखो ना जिंदगी कैसे चेंज होती है। मैजिक बुक कह रही है हमें, तो करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। जब ऊपर वाले ने भी हमें कहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, और हम लोग कई बार ये अफर्मेशन बोलते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर, मैं बोलते रहते हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, लेकिन वो क्रिएटर बनना कैसे है, वो चीजें हमने करनी कैसे है, वो कैसे सीखेंगे हम, वो आज हम सीख रहे हैं ना। देर आए दुरुस्त आए, करके देखना शुरू करते हैं। अगर क्रिएटर, हम अपने आप को सिर्फ अफर्मेशंस में बोलते आए हैं, यूट्यूब में सुना कि वो कह रहा है जी वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो कह रहा है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई, लिखो और आप क्रिएटर बन जाओगे। वो हमने सुबह उठ के अफर्मेशन बोलनी शुरू कर दी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ 50 बार बोल दी। उसके बाद में भूले और अपना छुट्टी, फिर जो हो रहा है उसको हमने कुछ किया ही नहीं। तो कैसे बन जाएंगे हम क्रिएटर ऑफ द लाइफ? नहीं पता था अब तक, कोई बात नहीं, आज पता चल रहा है। अब करके देखते हैं ये चीजें कैसे होंगी और अपग्रेड होंगे। तो मैजिक बुक को थैंक यू तो बोलना ही हमने ऑलरेडी, पहले ही हम बोल रहे हैं, यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं थैंक यू। तो हमारे और अच्छे अच्छे थैंक यूज हमने निकाल लिए हैं, तो आज करके देखेंगे हम लोग। हाँ जी डॉक्टर किरण। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना अंडरलाइन कर लो इस लाइन ज्यादा को, अप्रत्याशित समस्याएं मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। अंडरलाइन कर लो। हाँ जी मैम, आप इस आगे चलो। जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। सब कुछ एक ही लॉट में आ रहा है कि चिंता, तनाव, सब कुछ कम होना शुरू हो जाता है, प्रयास कम करने पड़ते हैं, खुशी अधिक मिलनी शुरू हो जाती है। तो बंडल में आ रहा है सब कुछ ये करने से। तो इस बंडल को आज हमने समेट लेना है, बंडल को जाने नहीं देना अपने हाथ से। सारे दिन बेहतर गुजरेंगे, छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। तो करके देखते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है तो आज से हम यही करेंगे। हाँ जी मैम, आगे। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन तो शुरू दिन दिन की की शुरुआत में शुरुआत मैं में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। जो कृतज्ञता काम अच्छा नहीं लगता आपको, उसके लिए पहले ही करना शुरू कर दो। उसको किस तरीके से पॉजिटिविटी में लेना है, और उसके लिए पहले ही थैंक्स बोलना शुरू कर दो कि वो चीजें जो आपको लग रहा है कि नहीं अच्छी होती, लेकिन उसको कैसे अच्छा बनाना है। वो हमने सीखा था नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे जाना है। तो वो करना शुरू करो, पहले थैंक्स करना शुरू करो, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ में। हाँ जी मैम। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली
उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल कौन जादुई थी। कौन कौन जाता है मार्केट में सामान लेने के लिए? चैट पे लिख के बताओ कौन कौन जाता है सामान लेने के लिए। क्या हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम भूले हो और फिर घर आ गए उसके बाद में याद आया, अरे यार ये तो मैं भूल गया। कौन कौन जाता है चैट पे डालो एक बार, सामान लेने कौन कौन जा रहा है घर से। मैं तो जाता हूँ लेने के लिए। ब्लिंकिट, ब्लिंकिट आ रहा है। आजकल तो ऐसा हाल हो गया। प्रियदर्शनी कह रहे आई गो, मी ज्योति दी जाती है, वेरी गुड। मैं भी ब्लिंक, जाती हूँ सर। हाँ जी। तो ब्लिंकिट बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी कई बार ऐसा होता है कि ब्लिंकिट का घर पे सामान आ जाता है, फिर कहते हैं अरे यार ये तो भूल ही गए, ये भी तो मंगवाना था। अब दोबारा मंगवाना है तो फिर वो सस्ता है तो फिर थोड़े से और अपने ऑर्डर बनाना पड़ता है जबरदस्ती का कि ये जी अब इसको पूरा करो तो ये आ जाएगा, डिलीवरी फ्री मिल जाएगी। करते हैं ना हम लोग। तो करना शुरू करेंगे, प्लानिंग करना शुरू करेंगे तो वो दोबारा हमें नहीं करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। चलो ये तो छोटे से एक जादुई मजाक की दिन बात थी, आगे चलते हैं। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। बिल्कुल। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। सबसे बढ़िया टाइम पता है क्या है? सुबह का। सुबह उठो, जब ब्रश करने जाओ तो ब्रश करते करते सोच लो। बहुत बढ़िया होता है। 2 मिनट का टाइम है सर, 2-3 मिनट के अंदर अंदर पूरा दिन अपना वो सोच लो। आलतू फालतू की चीजें जब हम कर रहे होते हैं ब्रश, तो हमारा ध्यान कई आलतू फालतू चीजों पे होता है। ब्रश करते हुए तो ब्रश करते करते अपना सोच लो कि आज पूरे दिन के अंदर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। लिख सकते हो तो उससे तो बढ़िया और कोई बात ही नहीं है। नहीं लिखने का टाइम, सुबह उठते ही हम ऐसे हैं कि भैया 7:30 बजे उठ रहे हैं और हमें पता है फटाफट रेडी होना है, तैयार होना है और 8, 8:15 बजे तक निकलना है घर से ऑफिस जाने के लिए। तो सबसे अच्छा यही है, हमारे पास बाई चांस लिखने का टाइम नहीं है, या तो 5 मिनट पहले उठो, अलार्म लगाओ, 5 से 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दो सुबह उठने का। अगर नहीं उठ पाते हो, नहीं कि नहीं हो ही नहीं पाता ऐसा, तो फिर हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग जाते हैं फ्रेश होने, उसके बाद ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते हुए सोचो 2 से 3 मिनट का टाइम है, उसी के अंदर पूरे दिन को बना लो कैसे करना है कैसे नहीं। एक एक घंटे का सोच लो फटाफट। टाइम ही क्या लगता है सोचने के अंदर, इमेजिन करने के अंदर हमारा दिन कैसा जाएगा। सबसे बढ़िया है ये तरीका। लिखो तो सबसे अच्छी बात है, उससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता।
कि 5 मिनट अपने दो, पहले बैठो और नियामतें लिख लो। 10 लाइनें लिखने में ज्यादा हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, किसी को 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसमें ज्यादा सोचना तो है नहीं, इसमें तो हमने वो सिर्फ नियामतें करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी है। रोज भी मैजिक बुक ये नहीं कहती कि रोज चेंज करो, आप रोज एक ही चीज को करना शुरू कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने डेली लिखनी है बस 10। हर वही चीज सेम जो कल लिख रहे हो वही भी आज लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 10 रोज की लिखनी है, रोज रोज नहीं उठाओ तो इससे बेटर भी कुछ नहीं है। रोज नहीं उठाओ 10 की 10। जब हम जितना ज्यादा सोचेंगे और जितना ज्यादा हम सोच के लिखेंगे, उतना ज्यादा फीलिंग अच्छी आएंगी, उतना ज्यादा फीलिंग सही होंगी हमारी। क्योंकि हम रोज एक नई चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो हमारे लिए और बेस्ट होगा। तो वो करके देखो। और उसके बाद में अपना, ये भी 1-2 मिनट का काम है सिर्फ, कि हमारे पूरे दिन का हमने क्या, उसको एक 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में डिवाइड कर लो पूरे दिन को, और कर दो फटाफट से। टाइम लगता ही नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, आगे डॉक्टर किरण। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो इसमें बताया कैसे आप आपने पूरे दिन का जो भी है, अब मीटिंग के लिए जा रहे हो तो पहले ही धन्यवाद बोल लो, थैंक यू बोल लो कि मीटिंग बड़ी अच्छी जा रही है। फोन आ रहा है आपका, फोन उठाने को पिक करने से पहले ही धन्यवाद बोल लो कि भैया ये जो भी है सामने वाला, उसके लिए थैंक यू, वो बहुत अच्छी न्यूज सुनाने वाला है मेरे को। तो फोन उठाने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद कह दो। नाम आप, आजकल तो नाम भी आ जाता है, नाम पढ़ लिया, ये है, और बहुत अच्छी न्यूज सुनाने वाला है, पहले ही सोच लो ना न्यूज अच्छी आने वाली है। मैच शुरू कर रहे हो उससे पहले ही सोच लो आज इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। सोचने में क्या यार, सोचो तो सही। अपनी विशेष तो दो, अपनी थैंक्स तो बोलो। जब हम लोग सारी मैच देखने से पहले थैंक्स कर रहे होंगे तो भगवान कहेगा भैया इनके थैंक्स में ज्यादा वो है। पाकिस्तानी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो तो कुछ नहीं कह रहे, तो फिर इंडिया को जिताना है। वो आजकल हो भी रहा है ऐसा। हम लोग सब पहले थैंक्स कहते हैं और सब पहले ही सोच के चलते हैं इंडिया जीतेगी, तो इंडिया जीत रही है। तो यही चीज हमें करनी है, कि पहले ही हमने अपने आप को, कि आज हमारी जीत होगी, आज हमारा दिन रहेगा पूरा, आज पूरा दिन वंडरफुल जाना है। और ये छोटे छोटे शब्द जो है ना, ये वंडरफुल, और ये अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दो। वंडरफुल, वाओ, ये वाओ वर्ड है, ये वंडरफुल वर्ड है, या मैजिकल लिखना शुरू करो। कुछ भी अपना कुछ लिख रहे हो तो लाइन के अंदर भी उतारो, आप अपने वाओ उतारो, वंडरफुल उतारो, मैजिक उतारो, मैजिकल मूवमेंट उतारो। ये वर्ड जितना ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हो, यूज करो इसको। वाओ तो ऐसे पकड़ लो कि हर बात, मेरी तो हर बात वाओ है जी, मेरा हर मोमेंट वाओ है जी। तो वाओ जितना बोलोगे, जितना वंडरफुल बोलोगे, वाओ वंडरफुल। देखो बोलते ही ना अंदर से वंडरफुल, एक बार बोल के देखो बड़े उसमें, वाओ वंडरफुल, वैसे ही हो जाता है हमारा एकदम की वाओ। जब हम बोलते हैं वंडरफुल, बोलते हैं वाओ, वैसी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको अंदर डालना शुरू हो, जितना ज्यादा पूरे दिन के अंदर यूज करोगे ना ये वाओ वंडरफुल मैजिकल वर्ड्स, और अच्छा अच्छा करते रहोगे। हाँ जी डॉक्टर जब किरण। आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी एक तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ,
तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि उसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। आप सबको ना एक मैं वो देता हूँ कि एक और टिप देता हूँ। एक काम किया करो, हम सुबह उठ रहे हैं, हम सुबह यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक ना अच्छी सी खबर रोज की अपने ना यहाँ मॉर्निंग में यहाँ पर, जो चाहता है कि मेरी आज और मैजिकल मूवमेंट्स मेरे साथ हो, तो जो कल हमारी मैजिकल कोई मूवमेंट ऐसी हुई है, तो हम बिना झिझके, चाहे वो छोटी से छोटी हो, तो यहाँ शेयर कर दो जब आपका दिल करे। जब हमारी जैसे ये सेशन खत्म होता है उसके बाद में दो चार पांच लोग भी बोलेंगे ना यहाँ पर आके कि अपनी शेयरिंग्स देंगे, तो वो शेयरिंग से हम लोग जब सुनेंगे तो अगले दिन हमारा भी वो दिन वैसे ही जाएगा। करके देखो, आज या शेयरिंग दो कि कल क्या अच्छा हुआ था आपके साथ में, यहाँ पर करो, एक बार डिस्ट्रीब्यूट करो, और आज देखो फिर उसके बाद में हमारे साथ और अच्छी अच्छी कितनी चीजें होती हैं, हमारी अच्छी मूवमेंट्स आती हैं नहीं आती हैं लाइफ में। मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में, यहाँ इससे बढ़िया और क्या होगा। यहाँ अपनी जो न्यूज़ है वो बांटो, बताओ अपने बारे में। जब यहाँ और लोगों को पता चलेगा, वो जब हम खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी, हमें और ज्यादा मिलेंगी खुशियां। ठीक है, तो ये आगे हमारा आगे नेक्स्ट, डॉक्टर किरण। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन एक को और चार तो सेम है, बाकी बीच में दो तीन नंबर पढ़ दो। एक और अच्छा, चार ठीक। तो सेम ही आता है। ठीक है। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि यह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली, सॉरी, तीसरे नंबर का है ये। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। तो बस यही हम अभी तक, मैं बोलता आ रहा हूँ बार बार कि हमें आज करना क्या है, कैसे करना है, और ये सारी चीजें हमने आज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत करता हूँ कि कल मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन है छोटी सी बात, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी है और मेरे लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। कल मैं बैंक में गया अपने, मेरे को कल पैसे चाहिए थे और बहुत जरूरी चाहिए थे और बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। मेरे को आगे पेमेंट्स करनी थी और कल ही करनी थी मेरे को। तो कल मैं बैंक में गया, तो जब मैं बैंक में पहुंचा तो वहां पता चला कि वहां तो लाइट का कुछ इश्यू चल रहा है, कंप्यूटर्स बंद है, सब कुछ बंद है। 4 बजे का बैंक है और 3 बजे वहां सब कुछ गुल हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए, वो कह रहा जी लाइट कर रहे हैं, अगर हो सकता है 10 मिनट में आ जाए, हो सकता है आधे घंटे में आए, नहीं तो हो सकता है ज्यादा देर लगे, तो आप बैठ जाओ, वेट कर लो। मैं कहा यार पैसे तो बहुत जरूरी चाहिए, और इतने चाहिए कि मेरे एटीएम कार्ड से भी मैं इतने तो नहीं निकलवा पाऊंगा, मेरे को उससे ज्यादा की पेमेंट चाहिए, तो मेरे को निकलवाने पड़ेंगे चेक के थ्रू। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा वेट करते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं। अब वो मैं वहां बैठा हूँ, 4 बज गए, कुछ नहीं हुआ। 4:30 हो गए, कुछ नहीं हुआ। 1.5 घंटा हो गया, सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ। कस्टमर में बाकी सब कस्टमर उठ उठ के चले गए कि चलो जी अभी तो है ही नहीं, लाइट वगैरह कुछ नहीं आया, तो चलते हैं चलते हैं। सब लोग चले गए, 4:30 हो गए, पौने 5 हो गए, 5 बज गए। अब लाइट आ ही नहीं रही है, क्या करें। और उससे क्या हुआ, कल मेरे को बेनिफिट इससे क्या हुआ, बैंक का स्टाफ काफी हद तक बदल चुका है, सिर्फ एक या दो लोग मेरे को जानते थे, तो वो मेरे पास भी आके बैठ गए, जो मुझे जानते थे, मेरे से बात करना शुरू की।
तो कल उसकी वजह से सारे बैंक का स्टाफ मेरे को सबसे जान पहचान हो गई। और लाइट अभी भी नहीं आई, 5 बज गए, हम लोग बातें कर रहे हैं। तो मैंने अपने बारे में उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे थेरेपिस्ट हूँ और मैं ये सारी चीजें पास्ट लाइफ वगैरह कर सकता हूँ। तो एक दो लोग बड़े खुश हुए, कहते हैं सर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम आप हमें क्लाइंट बनाओ ना, मेरा बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरा पास्ट लाइफ कर दो, मेरा ऐसे कर दो, ये एडिक्टेड है, इसको ऐसा है, इसको प्रॉब्लम वगैरह जी, मैं आपके साथ में, मेरे को सेशन देना आप। तो मैं करने के तैयार हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, स्मोकिंग का एडिक्टेड हो तो मैं इतने पैसे लेता हूँ, मेरे को 10,000 रुपया मेरी है फीस, 4-5 सेशन देने होंगे। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल आपके अकाउंट में पैसा डालता हूँ, मेरे को स्मोकिंग के लिए मेरे को करो एडिक्शन का। मेरे को 2-3 क्लाइंट मिल गए पहली बार। दूसरा मुझे क्या बेनिफिट हुआ, 5 बजे जब ये बातें हुई तो उन्होंने कहा आप ना अभी, उससे पूछा कि भाई लाइट आने में कितना करे, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, जनरेटर के साथ में हम कर रहे हैं, बार बार ट्रिप कर रही है तो नहीं हो पाएगा। मेरे से पूछा कि एक बात बताओ, आपके इसमें इतना पैसा तो है ना जो आप इतना चेक लेके आए हो। मैं कहा हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा कोई बात नहीं, आप चेक दे दो हमें, हम आपको पेमेंट दे रहे हैं और आप पेमेंट लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंट्री बाद में कर लेंगे। तो मेरे से उन्होंने चेक वो ले लिया, मेरे को कैश विड्रॉल मेरा जो था वो दे दिया। चेक उसके 2 घंटे के बाद में उन्होंने चेक किया, साइन वगैरह सब कुछ, और मेरे को पेमेंट दे दी। हम डिपॉजिट के लिए जाते हैं तो वो लोग डिपॉजिट ले लेते हैं बड़े आराम से कि चलो जी हम ये एंट्री कर लेंगे आपको साइन करके, क्योंकि ये कैश हमारे पास है। क्या कभी ऐसा किसी बैंक के अंदर हुआ है जहां आपको स्टाफ जानता ना हो और आपको वो पेमेंट दे दे, सिर्फ आपसे पूछ के? क्या ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ में? अगर हुआ तो मुझे बताओ कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपको वो सिर्फ आपकी वर्डिंग्स के ऊपर आपको उठा के दे दे कि हाँ, मेरे से पूछा आपके अकाउंट में पैसे है ना इतने, मैं कहा हाँ बिल्कुल है, मेरी टेंशन वाली बात नहीं है। और उन्होंने मेरे को पेमेंट दे दी उठा के कि लो जी ले जाओ। नो डाउट मेरा अकाउंट वहां पे बहुत सालों से है, लेकिन फिर भी स्टाफ जानता ना हो, सिर्फ एक आधा कोई जानता हो, तो क्या ऐसा होता है किसी के साथ में? मेरे लिए तो बड़ी ये मैजिकल मोमेंट रही कि पता नहीं लाइट कब आई होगी। हाँ, मेरे पास जो मैसेज आया वो 2 घंटे के बाद आया। तो आजकल तो सेकंड्स लगते हैं, सिर्फ वो जैसे ही एंट्री डालते हैं उसी समय विद इन सेकंड मैसेज आता है आपके उसमें कि डेबिट हो गया है पैसा। कल 2 घंटे के बाद आया। तो मेरे को हो सकता है वहां 2 घंटे को और वेट करनी पड़ती। तो मेरे लिए कितना मैजिकल मोमेंट रहा कि एक मेरे को वहां पे एक क्लाइंट मिला जिसने कहा कि कल मैं आपको 10,000 रुपया दे रहा हूँ जी, मेरा ये एडिक्शन का प्रॉब्लम है, मेरा करवाओ। और 2-3 लोग तैयार हो गए कि मेरी प्रॉब्लम्स है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। मैं कहा नहीं, मेरा एथिक्स अलाउ नहीं करता कि मैं पास्ट लाइफ ऐसे देखूं, लेकिन मैं मेटा क्वेश्चनिंग आपके साथ करूंगा, अगर मेरे को लगेगा कि ऐसा कुछ है तभी मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। होप कि वहाँ क्लाइंट्स मिले मेरे को। आज बैंक वालों को पता चला, बैंक वाले तो न्यूज़पेपर की तरह बांट देते हैं बात को, लोग उनके पास आते रहते हैं, ही बात चलती रहती है उनकी। कईयों के साथ ऐसे रिलेशन होते हैं बैंक वालों के। हो सकता है मेरे को वहां से और अच्छी अच्छी क्लाइंटेज मिलनी शुरू हो। तो मेरे लिए तो बेटर रहा वहां पर वो लाइट जाना, और वहां पे उस स्टाफ के साथ में मेरी बातें होना, मेरे को वहां से क्लाइंट मिलना, मेरे लिए कितना अच्छा रहा। तो मैजिकल मूवमेंट हुई ना एक कल मेरा, मुझे लगता है उसमें अपग्रेड हुआ, मेरी वैल्यू बनी वहां पर कि मेरे को बैंक वालों ने बिना उसके मेरा लिए चेक, साइन चेक किए, उसमें अकाउंट में चेक ही नहीं किया उन्होंने कि मेरे पैसे हैं भी नहीं, और जितने पैसे मैंने यहाँ चेक में भरे हुए तो उन्होंने मेरे को उतने उठा के पैसे दे दिए। तो ये वाव मूवमेंट नहीं है तो वो क्या है? ये मैजिक नहीं है तो क्या है? कि सिर्फ उन्होंने मेरी शक्ल देख के हाँ चलो जी ठीक है ये बंदा पुराना है, और दे दिए मेरे को पैसे। कैशियर भी नहीं जानता मेरे को, तब भी पैसे मेरे को मिल गए। तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे लाइफ में, और उसको नोट करना है हम सबको कि क्या हो रहा है हमारे सामने। एक बहुत बड़ी बात भी नहीं है और बहुत छोटी बात भी नहीं है, समझो तो इसमें बहुत गहराई है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है कि अरे यार एक छोटी सी बात ही तो है, कैश दे दी उन्होंने, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ये सोचो कि ऐसे आपको कैश विड्रॉल कभी मिला है? मेरी पूरी लाइफ होगी, मुझे तो नहीं मिला। 1,000 रुपए के लिए पहले बिठा देते हैं कि सर्वर डाउन है, जब सर्वर चालू होगा जी तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय, दुनिया बैठी थी वहां पर।
सारे चले गए उठ उठ के कस्टमर, किसी को उन्होंने नहीं कहा कि नहीं जी बैठो, आप बैठ जाओ जी। मेरे को क्यों बोला उन्होंने कि बैठ जाओ जी, कोई बात नहीं, दे देंगे पैसे, अभी चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। 1.5 घंटे का काम था, लेकिन उन्होंने कहा 15 मिनट देखते हैं, ये कर रहा है 10-15 मिनट में हो जाएगा। सबको उन्होंने यही बोला था कि 10-15 मिनट लगेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जाओ। मेरे को उनके मुंह से निकला ही नहीं कि आप जाओ। मेरे को तो सीधा उन्होंने कहा बैठो जी, 10-15 मिनट रुको, आपको पेमेंट मिल जाएगी। दुनिया को बोला उन्होंने कि देखो जी कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, अभी लाइट को आने का कोई भरोसा नहीं है। सबको यही बोल रहे थे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे बोला क्योंकि मुझे उन्होंने पेमेंट देनी थी। मैजिक हर एक के अंदर नहीं होता। मैं मैजिक कर रहा हूँ तो मेरे साथ मैजिक होना था। मेरे को वो बोल रहा है जी बैठो जी, आपको अभी देते हैं थोड़ी देर में। बाकी सबको तो भगा रहे थे कि नहीं जी, लाइट का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो यही मैं चाह रहा हूँ, आप लोग भी मैजिक अगर लाना चाहते हो लाइफ में, ये छोटे छोटे सी बातें हैं जो हमारे दिन को और अच्छा बनाती है। घर आके उसके बाद में मैं इतना खुश हुआ, अपनी मैंने मदर को बताया कि आज मेरा काम इस तरीके से कर दिया उन्होंने। मेरी मदर ने भी कहा वाह, ऐसा तो होता नहीं है राजेश, बहुत बढ़िया हुआ, ये चीज कैसे होगी, ऐसा कैसे कर दिया। हमने नोट किया, 2 घंटे के बाद हमारे पास मैसेज आया, तो मम्मी कहती है वाह क्या बात हो गई यार, बहुत बढ़िया भी बात हो गई है, तो ऐसा होता ही नहीं कि रात को 6-6:30 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद मैसेज आ रहा है हमारे पास में। तो और कोई ऐसा कोई अपनी बात बताना चाहे, शेयर करना चाहे, और मुझे लग रहा है आज ये मैंने शेयर किया है, तो आज और मैजिक मूवमेंट्स मेरे साथ होंगी लाइफ के अंदर, आज मेरे साथ ऐसा कुछ और अच्छी बातें होने वाली है। एंजल हो सही कह रहे हो, एंजल बना दो अभी से मेरे को। एंजल बन गए, लोगों के सर पे घूमना नहीं है मेरे को, अभी यही रहना है इसी दुनिया के अंदर। एंजल मत बनाओ। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जो आना चाहे हैंड रेस करके आना चाहे तो आ जाए, नहीं तो फिर हम अपना डेली रिचुअल करते हैं जो हम कर रहे हैं। अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा मैजिकल नोटिस किया हो किसी ने, तो आगे आ सकता है। तो फिर कैमरास ओपन कर लो, अपना मैजिकल डस्ट शुरू करते हैं। और आज हम जो मैजिकल डस्ट है वो हेल्थ के लिए करेंगे, ठीक है। जिस जिसको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो हेल्थ से मुझे रिलेटेड। थोड़ा ज्यादा हेल्प के लिए देना, क्योंकि मैं कल से बहुत ही वीक बिल्कुल महसूस कर बिल्कुल, रही हूँ। आज हमने हेल्थ के लिए इसलिए दे रहे हैं। और ये सब यहाँ पर इस समय डिम्पल मैम नहीं है, तो हम डिम्पल मैम के लिए भी साथ में हेल्थ के लिए दे रहे हैं, जो थ्रॉट की प्रॉब्लम उनकी हो रही है या स्नेहा के साथ में कोई हो रही है, तो उसके लिए हम इनको आज मैजिकल डस्ट और हीलिंग देंगे सारे जने। रिंकी, रिंकी एक्सपर्ट है, तो रिंकी तुम डिम्पल मैम को एग्जैक्टली। सोच के और ये स्नेहा को सोच के इनको थ्रॉट का देना, ठीक है। कलेक्टिव हीलिंग दे दें। हाँ जी, जैसा दिल करे वैसा करो आप। कलेक्टिव दे दें हाँ सबको। कलेक्टिव ही देते हैं, कोई बात नहीं, आज इन दोनों को ही देते हैं चलो। बाकी हेल्थ के लिए सबको देना, क्या दिक्कत है, सबको दो, सबको मिलनी चाहिए हेल्थ के लिए। डॉक्टर विकास भी आज आ गए, थैंक यू सो मच। आपको मैं मिस कर रहा था डॉक्टर विकास, आपकी रेकी को सिंबल्स आपने शुरुआत उस दिन की थी इतने अच्छे तरीके से। नमिता मैम भी आ गई है हमारी रेकी मास्टर, और रिंकी तो है ही है साथ में। ये प्रोफेसर साहब भी आ गए, थैंक यू प्रोफेसर साहब आपका आने के लिए। कैमरा ओपन किया करो, कितने अच्छे अच्छे सुबह सुबह चेहरे नजर आते हैं सबके। सब उठ के मुंह हाथ धो लिया करो, शर्म आती है तो। मजाक में देना कहीं नाराज हो जाओ, नाराज मत होना। काम वाम करके बैठ जाया करो, कैमरा ओपन करके सारे जने। और इस समय तो बैठ ही जाया करो, ये तो फ्री बट रही है मैजिकल जस्ट, सब ले लिया करो, कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें। आओ, आज हेल्थ के लिए हम मैजिकल डस्ट देंगे। और हम खासकर दो लोगों को तो खासकर देंगे, हमारी स्नेहा को और डिम्पल मैम को। और बाकी हम सब एक दूसरे के ऊपर, तो आज हमें चाहिए हेल्थ सबको बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर किरण, प्रियदर्शनी, जॉय जी, रिंकी, ज्योति जी, डॉक्टर विकास, नमिता, प्रोफेसर बैन, इशरत,
अंशु जी, स्नेहा, डिम्पल मैम, शर्मा जी आ गए हमारे, पीके शर्मा जी, अनुराधा मैम, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेडमी एवन, दीपक पटेल जी, और राजिंदर जी। राकेश रघुवंशी जी भी थे, अभी वो अभी कहीं चले गए होंगे, तो उनके लिए भी, जो जो हमारे साथ है वहाँ सबके लिए। और राजेश अरोड़ा के लिए भी, मैं भूल गया अपना नाम। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब हम सब लोग ऐसे एक दूसरे को हीलिंग देते हैं, और सब अभी, पहले तो मैं ऐसे कर रहा था, लेकिन जब हाथ मैंने ऐसे करके सबको देखना शुरू किया ना, मुझे ऐसे लगा कि सब लोग ऐसे हाथ करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे सारे वो देवी देवता सारे मेरे सामने बैठे हैं, और सारे ऐसे करके मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। और सुबह सुबह सब ऐसे रेकी का वो कर रहे हैं साथ में, जैसे रिंकी कर रही है, विकास जी कर रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई हम लोग वाकई क्रिएटर है अपनी लाइफ के। और आज मुझे नजर आ रहा है कि हम लोग खुद के लिए तो क्रिएटर हैं ही, और दूसरों की लाइफ को भी कितनी अच्छी तरह से हम हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग से भर रहे हैं। जैसे हमारे, हमने देखा है अपने, हम हिंदुओं के अंदर होते हैं तो भगवान हमारे ऐसे हाथ रख के बैठते हैं ना, वही सेम आज हम लोग ऐसे करके बैठे हैं, और ऐसे करके हम रेस दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, धूल दे रहे हैं। तो मुझे रियलिटी में सामने ऐसे लग रहा है, जिन जिन के कैमरास खुले हैं और सब ऐसे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सारे ऊपर से भगवान आके मेरे सामने बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे करके, जा राजेश, आज भला ही भला होगा तेरा। तो कितनी वाव मूवमेंट है, कितना अच्छा लग रहा है ये चीज देख के। और जैसे आज मैं फील कर रहा हूँ सामने, आप सब लोग भी ऐसे देख रहे होगे तो शायद आपको भी वैसी फीलिंग आएगी, और आप लोगों को भी लगेगा वाह, हाँ ऐसा हो रहा है यार। तो हम सब अपने अपने क्रिएटर है, अपने लिए तो क्रिएटर है ही, और दूसरों के लिए भी हम ये कर रहे हैं, तो हम दूसरों का भी भला कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा फील हो रहा है ऐसे सबको आज, एक सेकंड पहले मैंने ऐसे करके रख लिया हाथ, और सबके हाथ ऐसे लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब मेरी तरफ कर रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं। और अंदर से एक ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है सबके लिए जो कर रहा है। यहाँ पर जितने लोग भी ऐसे करके कर रहे थे, मेरे को मन से मेरे ग्रेटिट्यूड निकला सबके लिए, कि सबकी लाइफ आज अच्छी हो। मैं अपने लिए तो क्रिएटर बनूंगा बनूंगा, और आज सबको ग्रेटिट्यूड से भर दूंगा मैं, कि सबके लिए अच्छा हो, आज का दिन बहुत बढ़िया हो। अब 5 मिनट के लिए अगर हम लोग करना चाहें मिड ब्रेन, तो 5 मिनट के लिए जो जो करना चाहे वो रुक सकता है, बाकी जो जाना चाहे वो लीव कर सकता है।
मैं अभी जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम